Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Stupa. Now, Stupa is an example of Buddhist architecture. That is the Buddhist architecture. At the same time, it's also represented many things in the Buddhist tradition, such as it stood for the axis. It stood for the axis, that is the mundi, and it's represented the center of the universe, the center of the universe. It's also, stupas also represented the parinibbana, that is the death of Buddha. It also the repository of relics of Buddha and the other monks. That is the repository of relics of Buddha. Relics means that is the bodily remain of Buddha and later the other monks. So जो earlier स्तूपास थे वो ओरिजिनली बुद्धास की जो बॉडली रिमेन्स थे उनके ऊपर बने थे. लेटर क्या हुआ, it was also built upon the bodily remains of bodhisattvas or the monks. Okay, now it was also the place of veneration. That is, it was also the place of veneration, worship, pilgrimage for the monks as well as the laity, that is the individuals. Okay, let's say अब थोड़ा सा origin देख लेते हैं. Now, as you know, the stupa is an example of Buddhist architectures and these were the places of worship. Now, stupa building activities commenced in 5th century. जो stupa building activities थी, it started in 5th centuries and continued till the Gupta age. Okay, and continued till the Gupta period. जो first reference है of the word stupa is found in the Rig Veda. काफ़ी important है. It's found in the Rig Veda. और ऋग वेदा का क्या टाइम पीरियड है, 1500 BC to 1000 BC. अच्छा, जो ऋग वेदा में जो वर्ड स्तूपा का मेंशन है, here it does not mean a piece of architecture as in Buddhist tradition. Now जो ऋग वेदा में है, it just refers to the fire coming out from the altar. एक कोई altar है and the fire coming out from it. So यहाँ पे उसका स्तूपा का वर्ड ये है, that is the fire. Fire coming out from altar, that is the Havan Kund. Okay, now ये जो स्तूपास की एक्टिविटीज थी, it was flourished during the modern period. Now अभी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में आ गया. सो स्तूपा symbolizes the parinibbana, that is the death, because it was built on the bodily remains of the dead. So in this way, स्तूपा symbolizes the transience, that is the, it symbolizes the transience. और transience क्या होता है, in simple word, it is the temporary character, that is the temporary character. Okay, now in this way the stupa, it symbolizes the world, it symbolizes the temporary character of the world. Now the stupas were worshipped by the Buddhas. Okay, जो बुद्धिस्ट थे वो वर्शिप करते थे स्तूपास को इवन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ इमेज वर्शिप. ओके, अब इमेज वर्शिप कब आया था? एज यू ऑल नो दैट इमेज वर्शिप केम्स इन द महायाना बुद्धिज्म. ओके, जब उसका
एमर्जेंस और जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था महायाना बुद्धिज्म, दैट इज द ग्रेटर वैकिल्स, तब आया था। बट एट द सेम टाइम जो अर्लियर बुद्धिस्ट थे वो स्तूपास में ही वर्शिप करते थे विदाउट एनी आइडल। ओके, now जो अर्ली स्तूपास थे इट वॉज बिल्ट ऑन द रिमेन्स ऑफ द बुद्धा। एट द सेम टाइम जो लेटर जो स्तूपास थे इट वॉज ऑल्सो स्टार्टिंग बिल्ट अपॉन द रिमेन्स ऑफ द बोधिसत्वास ऑल्सो। ओके, इट वॉज बिल्ट अपॉन द बोधिसत्वास। जो अर्ली जो स्तूपास थे इट वॉज बिल्ट अपॉन द बुद्धास बॉडली रिमेन, और जो उसके लेटर जो स्तूपास थे इट वॉज बिल्ट अपॉन द बोधिसत्वास रिमेन्स। नाउ हु वर द बोधिसत्वास? Now they were the monks of Mahayana Buddhisms. At the same time, they were considered to be the philanthropic beings. That is, these are the monks of Mahayana or the greater vehicle. Mahayana Buddhism, and these are the philanthropic beings. Now, what does this mean? Now, this means as they used to work for the salvations of the others before working on their own salvations. Now ये जो बोधिसत्वास थे he was just about to basically getting their old salvations, but वो अपना delay कर देते थे at the same times for the working for the salvations of other. So ये अपने लिए काम नहीं, ये दूसरों के लिए काम करते थे। ओके, that is why they are known as the philanthropic beings. और जो अरहत थे, now they were the monks of Hinayana, that is the lesser vehicle, Hinayana Buddhism. Now they were considered the selfish being because they used to work on their own salvation, और ये selfish थे because they used to work on their own salvation. Okay, थोड़े से characteristics देख लेते हैं। बेसिकली जो स्तूपास है, नाउ द स्तूपास हैड ए शेप ऑफ ए बाउल। अब ये जो ये आपको शेप दिख रहा होगा ना, इट वाज अ शेप ऑफ ए बाउल। ओके, लेट मी चेंज द कलर। या सो इट इज एन जो बाउल है अपसाइड डाउन, सो अपसाइड डाउन है। एट द टॉप ये जो बिग फ्लैट है यहाँ पे क्या है, ये इट इज द हार्मिका, इट इज यूज्ड टू बी हार्मिका। और ये जो हार्मिका है ये कंसिडर्ड दैट इज द abode of the gods, Harmika, that is the abode of the gods or the seat of the gods। जो यहाँ पे हार्मिका है ये रिप्रेजेंट करती थी seat of the gods। okay, and it was here the urn containing, एक urn है वहाँ पे जो रिमेन्स हैं बुद्धा के और एनी ग्रेट पर्सनैलिटी के जो भी रिलेटेड विद द रिलीजन है वहाँ पे प्लेस किया जाता था। और जो हार्मिका के अंदर एक कैस्केट रखी जाती थी। नाउ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज़ दी कैस्केट, CASKET। ये आइदर गोल्ड का होता था और सिल्वर, और एक्चुअली इट्स अ बॉक्स, और उसके अंदर ओरिजिनली रिमेन्स रखे जाते थे आइदर बुद्धा के आइदर किसी और। तो ये कैस्केट वर्ड अगर कभी भी आया तो बेसिकली द कैस्केट वर्ड इज रिलेटेड टू, इट वाज रिलेटेड टू द स्तूपा। ओके, उसके बाद अ वुडन रॉड, एक वुडन रॉड। अब ये जो एक वुडन रॉड है यष्टि, दैट इज एक ये ओके हाँ, ये जो वुडन रॉड है यष्टि, इट वॉज प्लेस्ड इन द मिडिल एंड द बॉटम ऑफ द रॉड वॉज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द स्तूपा। ओके, और जो टॉप ऑफ दिस रॉड है देयर वर 3 अम्ब्रेलास टाइप डिस्क। अब ये जो डिफरेंशिएट है ना 1 2 3, ये जो छोटे छोटे डिस्क हैं ये अम्ब्रेला टाइप डिस्क। अब ये सिंबलाइज क्या करते हैं, ये 3 डिस्क सिंबलाइजेस द 3 एलिमेंट सच एज, फर्स्ट जो है इट रिप्रेजेंटेड द रिस्पेक्ट, सेकेंड रिप्रेजेंटेड द वेनिरेशन, वेनिरेशन क्या हुआ मीनिंग, वेनिरेशन मीन्स डिवोशन, and the third is the magnanimity। और magnanimity का मीन्स क्या हुआ, it means the greatness of mind और the dignity of soul। तो ये तीनों वर्ड बुद्धा से रिलेटेड हैं। तो ये जो 3 अम्ब्रेलास टाइप ये जो है आपका यष्टि के ऊपर जो इसको है अटैच है, तो ये रिप्रेजेंटेड द रिस्पेक्ट, वेनिरेशंस एंड द मैग्नैनिमिटी। ओके, एट द सेम टाइम्स अब ये जो है ये हार्मिका हो गया और ये डोम हो गया, दैट इज अ सेमी हेमिस्फीयर, ये डोम हो गया।
ये हार्मिका हो गया जहाँ पे बॉडली रिमेन्स, और जो बेसिकली इसमें एक कैस्केट के अंदर बॉडली रिमेन्स रखे हैं। यष्टि एक वुडन रॉड हो गई जिससे अटैच है 3 छत्रास, और छत्रास रिप्रेजेंट करते हैं 3 एलिमेंट, दैट इज द रिस्पेक्ट, वेनिरेशन एंड द मैग्नानिमिटी। ओके, और ये जो आपका जो ये बेस का पार्ट है ना, ये एक सर्कम्बुलेटरी पाथवे है। नाउ सर्कम्बुलेटरी पाथवे, दैट इज द प्रदक्षिणा पाथ, इट वॉज प्रोवाइडेड अराउंड द स्तूपा ऑन द ग्राउंड इनसाइड द रेलिंग्स। अब ये जो आपको रेलिंग्स दिख रही है ना यहाँ पे, जो स्टार्टिंग में रेलिंग्स, इसके अंदर एक प्रदक्षिणा पाथ है। और ये जो प्रदक्षिणा पाथ का मीन्स क्या होता था, ये जो इंपॉर्टेंस क्या था ना, यहाँ पे डिवोटीज इट वेव अ होमेज टू द स्तूपा, वो आते थे तो उनको एक बेसिकली एक पैसेज, एक चक्कर लगाते थे, सो इट्स डिनोटेड द होमेज टू द स्तूपा। अच्छा, नो अर्लियर क्या था, सिर्फ और सिर्फ ये ग्राउंड सर्कम्बुलेटरी पाथवे था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, एनदर सर्कम्बुलेटरी पाथवे वॉज एडेड, और ये मिडिल ऑफ द स्तूपा में ऐड किया गया था। दोनों तरफ ये जो स्टेयर्स हैं, ये जो स्टेयर्स हैं बेसिकली ये जाने का रास्ता है इनको, एक तो नीचे हो गया, फर्स्ट इज नीचे, सेकेंड ये मिडिल में हो गया, और द थर्ड टाइम ये ऊपर हो गया, जो ये आपका दैट इज अ हार्मिका। और ये जो किससे कवर्ड होता था, ये जो होल सारा कवर्ड था ये रेलिंग से, और रेलिंग को हम क्या कहते थे, दैट इज दी वेदिका। ये वेदिका वुडन भी हो सकती थी, आइदर स्टोन भी हो सकती थी। जो स्टार्टिंग में थी ये जो रेलिंग्स थी, ये स्टार्टिंग मेड्स ऑफ वुडन, एंड द लेटर इट वाज कन्वर्टेड इनटू स्टोन्स रेलिंग्स। ओके, तो ये सारी रेलिंग्स हैं। ओके, अब ये जो एक रेलिंग यहाँ हो गई, एक रेलिंग मिडिल में हो गई, और जो हार्मिका के इनर राउंड एक रेलिंग यहाँ पे हो गई। अच्छा, जो इसका कोर है, तो जो कोर ऑफ द स्तूपास जो है, दैट इज द कोर ऑफ द, ये जो बीच का पोर्शन है, इट वॉज फर्स्ट मेड ऑफ अनबर्न ब्रिक। पहले इसको अनबर्न ब्रिक से बनाया जाता था, लेटर क्या हो जाता था, इसमें बर्न ब्रिक की एक लेयर लगाई जाती थी, और उसके ऊपर एक थिक लेयर ऑफ प्लास्टर। उसके बाद मेथी और द तोराना, मेथी क्या हो गया, सर्कम्बुलेटरी पाथवे और द पेडेस्ट्रियन पाथवे, और तोरानाज ये गेटवेज हो गए, जैसे ईस्टर्न तोराना हो गया, ये वेस्ट तोराना, ऐसे नॉर्थ और साउथ तोराना भी अवेलेबल होंगे। ना तोरानास, ना ये डेकोरेटेड बाय द वुडन स्कल्पचर्स। ओके, और इसमें जो डिवोटीज वॉक अराउंड द प्रदक्षिणा पाथ और एन ओपन एम्बुलेटरी पैसेज एज एन बेसिकली उसको वर्शिप से, दैट इज अ पे होमेज टू द स्तूपा। नाउ ये हार्मिका है, ये अपर व्यू है इसका, ये एक्सेस पावर हो गई जहाँ पे वो रखा जाता था। ये वेदिका हो गया, दैट इज दी जो वेदिका में रेलिंग हो गई इसकी इन एंड अराउंड। ये तोरानास हो गई, ये स्टोन वाली प्रदक्षिणा पाथ हो गया आपका, ये सारा गेटवे हो गया। अकॉर्डिंग टू दी बुद्धिस्ट टेक्स्ट महापरिनिर्वाणा, देयर आर 8 स्तूपास, and these 8 stupas are built by 8 great rulers of the age. Now according to some other texts it was also said जो 8 स्तूपास हैं at the same times plus 1 vessels, जो ये जो 8 स्तूपास थे ये बुद्धास के जो बॉडली रिमेन्स उसको 8 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसको हार्मिका में प्लेस किया गया, ओवर विच द स्तूपा वॉज बिल्ट। दैट इज ये जो पोर्शन है ये आपका स्फेरिकल डोम हो गया, और यहाँ पे जो हार्मिका हमने देखा था फ्लैट में हार्मिका, उसके अंदर कैस्केट के अंदर रिमेन्स रखे गए। तो ये 8 स्तूपास जो ओरिजिनल बुद्धास की जो बॉडली रिमेन्स थे उनको उनके ऊपर बनाए गए हैं। अच्छा, जो सम अदर टेक्स्ट है दैट देयर आर द 8 स्तूपास अलोंग विद द 1 वेसल्स, और इन वेसल्स के अंदर ओरिजिनल बुद्धास के रेलिक्स रखे गए हैं। अच्छा, ये जो 8 स्तूपास हैं इनकी लोकेशंस, कुछ की लोकेशंस ट्रेस्ड हुई हैं, एंड दे आर सेड दैट इट वाज इन दी फर्स्ट इज वैशाली, सेकेंड इज दी सारनाथ, थर्ड इज तक्षशिला, अनदर इज मृगादेवा, और ये मृगादेवा कहाँ है, मृगादेवा इट इज नियर काशी यूपी। अदर इज पिपरावा, it's also in UP and it is in Siddharth Nagar district of UP. Okay, now as per the Buddhist text Avadana Sutta, ये जो 8 स्तूपास थे इट वॉज ओपन बाई दी अशोका, और जो इसमें रिमेन्स थे इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इंटू 84,000 स्तूपा विच वॉज बिल्ट बाई दी अशोका। ना ये जो 8 स्तूपास थे ये अशोकास ने ओपन करवाए, और जो ये जो बॉडली रिमेन्स थे इसमें से निकाल के, दैट इज़ द कैस्केट हार्मिका से निकाल के, इसको 84,000 में डिवाइड करके 84,000 स्तूपास बनाए।
नाउ दैट इज द स्तूपास अंडर द अशोका हम देख लेते हैं. नाउ जो एम्परर अशोका वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म एंड ही बिल्ड 84,000 स्तूपास ड्यूरिंग हिज रेन. जो प्रोमिनेंट अशोका स्तूपास हैं जो डिस्कवर्ड हुए हैं, इट वॉज इन सांची, इट इज इन मध्य प्रदेश, भारत, it is in Satana district also in Madhya Pradesh, Sarnath, it is in Varanasi, UP, Amravati, it is in Guntur district, Andhra Pradesh. Okay, now according to Chinese traveler Wen Tsang, he visited India during the 629 to 645 AD. At the same times वो क्लेम करते हैं कि अशोकन स्तूपास वर सीन बाय हिम. ओके, नाउ कहाँ पे सीन किया गया है? सो इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू सेंग दैट इज इट वॉज सीन बाय हिम एट ताम्रलिप्ति, समातटा, कर्ना सोवर्ना, और ये जितनी भी सारी लोकेशंस हैं इट वाज ऑल लोकेटेड इन बंगाल. ये उन्होंने बंगाल में ये स्तूपास उन्हें आई विटनेस किए हैं. Now during the reign of Ashoka, the railings and the gateways of स्तूपास were built in wood. हमने देखा था जो अर्लियर स्तूपास थे उनकी जो रेलिंग्स थी alongs with जो स्तूपास जो उसका स्ट्रक्चर था इट वॉज मेड इन वुड ड्यूरिंग दी Ashoka's time. Okay, now stupas during the post-modern age. Now during this period, the old stupas built by the Ashoka, जो अशोका ने stupas बनाएंगे, it was repaired. At the same time, large number of new stupas were built. That is, जो अशोका के stupas थे, पोस्ट मॉडर्न में रिपेयर हुए थे, जो भी वो खराब हो गए थे. At the same time, new stupas, large number of new stupas were built. अच्छा, नाउ जो अशोकास ने वुडन रेलिंग्स का यूज़ किया था इन द तोरानास का, अब ये जो पोस्ट मॉडर्न में ये चेंज होके स्टोन रेलिंग्स इन तोरानास हो गए थे. ओके, दैट इज इन दिस में स्टोन्स का यूज स्टार्ट हो गया था. स्टोन्स इन दी रेलिंग्स एंड अलॉन्ग विद दी तोरानास जो गेटवेज थे अब स्टोन्स के होने लगे थे. नाउ द पोस्ट मॉडर्न एज में अर्लियर जो अशोकास के टाइम में इट वॉज नॉट मच लार्जर इन शेप. नाउ दिस टाइम अभी लार्जर होने लगे स्तूपास जो इस टाइम में बिल्ट हुए. एट द सेम टाइम्स डेकोरेटिव, मोर डेकोरेशन उसको प्रोवाइड मीन्स उसको और डेकोरेटिव स्टाइल में इस्टेब्लिश और फॉर्म करवाने लगे. नाउ एट द सेम टाइम्स जो अंडा था दैट इज द डोम, दैट इज द हेमिस्फीयर. नाउ इट वॉज एनलार्ज्ड बाई एडिंग, इसमें मोर लेयर्स ऐड करके. और इसमें अब जो अर्लियर में क्या होता था, ये जो इसका जो बेस था दैट इज द कोर थे, इसमें ब्रिक्स यूज होता था, आइदर द बर्न्ट और द अनब्रिक. नाउ दिस टाइम अब इसमें स्टोन ऐड होने लगा, इसमें ये स्टोन्स के कंस्ट्रक्ट होने लगे. नाउ इन नॉर्थ इंडिया में नाउ द स्तूपास वर बिल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ शुंगास एंड कन्वास. Now, as you all know, the Pushmitra Shunga, he was a strong anti-Buddhist and he destroyed the many stupas, Buddhist monasteries, and even killed the various Buddhist monks. And also he announced a reward of 100 dinars on the head of each Buddhist monk. So basically Pushmitra Shunga, he was an anti-Buddhist. और उसने काफ़ी स्तूपास में जितने भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर था उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया. दैट इज़ द एंटी बुद्धिस्ट. बट एट द सेम टाइम्स जो उसका सन था दैट इज द अग्निमित्रा, ही वॉज द सन एंड द सक्सेसर ऑफ द पुष्यमित्र शुंगा. ही वॉज द प्रो बुद्धिस्ट. सो ही रिपेयर्ड जो भी उनके फादर ने डिस्ट्रॉय किए थे, ही रिपेयर्ड सेवरल स्तूपास. एट द सेम टाइम्स ही बिल्ट सेवरल न्यू स्तूपास. और जो सांची स्तूपा है ऑफ द अशोका दैट इज द सांची stupas of Ashokas, it was repaired and enlarged by him. At the same time, 2 new stupas were also built by him at the Sanchi. Okay,
नाउ अब डेक्कन में देख लेते हैं. नाउ इन डेक्कन द स्तूपास वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सातवाहनास, इश्कवाकुस एंड द वाकाटकास. दैट इज द सातवाहनास, इश्कवाकुस and the Vakatakas. Okay, now ये जो these stupas have been discovered at Amravati and the Nagarjunakonda, that is both are in Andhra Pradesh. Now stupas during Gupta age. Now अब यहाँ पे आते आते that is the 4th century AD जो building activities थी stupas की, it was no longer a dominant feature of Indian art and architectures. कुछ रेफरेंस सिर्फ ओनली वन स्तूपा, दैट इज द धामेक स्तूपा ऑफ द सारनाथ वाज built during this age, that is the Dhamek stupa of Sarnath in UP Varanasi. Okay, now some of the prominent stupas. Now stupas of Bodh Gaya. Now it was the 15 kilometers from the Gaya. ओके और गया क्या है? गया इज द साइट वेयर द लॉर्ड बुद्धा गेन नॉलेज, दैट इज द बोधि ट्री. नाउ इट वॉज हेयर द अशोका गॉट द बोधि मांडा एंड ही कंस्ट्रक्टेड एज वेल. नाउ जो ओरिजिनल जो कंस्ट्रक्शन है वो सर्वाइव नहीं है, देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल ट्रेस ऑफ द ओरिजिनल कंस्ट्रक्शंस. नाउ वी हैव ओनली अ रिमेन्स ऑफ स्टोन पिलर्स हमें मिलता है दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द शुंगा पीरियड, like the railings pillars found around the other stupas, and that too have sculptures or the panels in relief. So हमें उसका that is some stone pillars मिलते हैं और some railings, stone pillars, railings. Okay, और तो ये जो railings थी और जो stone pillars थे, it was heavily sculpted. Okay, second, that is the Sanchi Stupa. Now the Sanchi Stupa, it is located in the Madhya Pradesh, and it is about the 14 kilometers from the Vidisha, that is the Bhilsa, and it was perhaps the most famous stupa site in India. Now ये जो पूरी site है, it was, there are the 3 stupas all with the gateways around them, or there are the gateways around them, but the most famous ये जो है that is the Great Stupa. Okay, the most famous is the Great Stupa, जो कि it was originally made of the Ashoka's time. Now अब जो शुंगा during the शुंगा period में क्या हुआ था, it was later on nearly doubled in circumferences. और ये किसने किया था double? And that is the अग्निमित्र शुंगा. Now ये जो bricks हैं, the bricks of the Ashokan times, it was replaced by the stones. और जो उसकी वेदिका है, that is the railings, it was also, ये जो वेदिका है, ये जो railings है, it was also constructed around it. Okay, now 4 gateways हैं in the each directions, and it added to beautify it. Okay, now from the southern gate we get an inscriptions जो कि ये बताते हैं it was donated by the king Satakarni, and incision work was done by the other craftsmen who worked in ivory. जो इसका जो इंस्क्रिप्शन है उन्होंने जो कोट किए हैं, इट वॉज डन बाई दोज क्राफ्ट्समैन हु वर्कड इन आइवरी. जो नॉर्थन गेट है एंड द पैनल्स, इट डिपिक्ट्स अबाउट द स्टोरीज फ्रॉम द जतका, दैट इज द प्रीवियस लाइफ ऑफ द बुद्धास. और जो रिलीफ्स है ऑफ द सांची, इट डिस्प्लेस अमंग द अदर रिप्रेजेंटेशंस. ओके, नाउ ये जो 4, अब जिस कौन कौन से जो सारे जो है रेलिंग्स हैं या फिर जो तोरानास हैं, इसमें क्या क्या जो इवेंट्स डिपिक्ट हैं, इट डिपिक्टेड द 4th ग्रेट इवेंट्स ऑफ द बुद्धिस्ट लाइफ, दैट इज देयर बर्थ, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, धर्मचक्र परिवर्तना, and the Mahaparinibbana, that is the death, Mahaparinirvana. Now there was also representations of natural elements, that is the birds and animals like lions, elephants, camels, all etc. And some of these animals are shown with riders in heavy coats and boats,
At the same time, some lotuses and the wishing vines are also there, and it was beautifully carved out as an ornamentations. Because ये जो जो इंसिजन वर्क है ये किन्होंने किया था? इट वॉज द क्राफ्ट्समैन जो कि आइवरी का काम करते थे. सो एट द सेम टाइम देयर वाज एन ऑल्सो एन यूनिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द फॉरेस्ट एनिमल्स इन एन एनिमल्स विच लुक्स एज इफ द होल एनिमल वर्ल्ड वॉज टर्न इन टू द वर्शिप ऑफ द बुद्धा. सारा का सारा बुद्धा की वर्शिप कर रहा है. ओके, द सेकेंड इज द भारत स्तूपा. और ये जो स्तूपा इट वॉज लोकेटेड 21 kilometers from the south of Satana in the Madhya Pradesh. That is, it was located in the Madhya Pradesh. जो मेन स्तूपा है इसका स्ट्रक्चर इट वॉज नो लॉन्गर एग्जिस्ट. और जो इम्पोर्टेंट जो इसके फीचर्स हैं दैट इज इसके जो रिमेन्स हैं ऑल्दो इस स्ट्रक्चर वॉज नॉट नो लॉन्गर एग्जिस्ट. जो इसके रिमेन्स है इट वॉज प्रिजर्व्ड इन द इंडियन म्यूजियम ऑफ कैलकाटा. जो इसके रिमेन्स हैं इट्स रिमेन्स आर फाउंड इन द that is the museum of Calcutta. और इनके भी जो वुडन गेटवेज हैं दैट वाज द ग्रेटली कार्व्ड. जो रेलिंग्स हैं इट वाज स्प्रेड थ्रू आउट द गेटवेज. और जो इसका वर्क है देयर वाज एन ऑल्सो एन इंटिमिटेशंस. स्टोन्स का भी काम है इसमें ऑफ द पोस्ट एंड द रेल फेंस. बट द स्टोन रेलिंग्स ऑफ जो भारत है हैव ऑन टॉप अ हैवी स्टोन बॉर्डर. ये जो है ना ये जो ऊपर अपर है दैट वाज एन हैवी स्टोन बॉर्डर. ओके, और ये क्या है दैट इज इट वाज आल्सो नोन एज द कोपिंग. जो अपराइट ऑफ द पोस्ट है दीज रेलिंग्स हैव द कार्विंग ऑफ द यक्षा. जो यहाँ पे है दैट इज द कार्विंग्स ऑफ द यक्षास, यक्षीज एंड द अदर डिविनिटीज हु केम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म. और जो सम ऑफ दीज डिविनिटीज हैं हैव इंस्क्रिप्शंस ऑन देम एंड गिविंग देयर दैट इज फॉर देयर आइडेंटिफिकेशंस. There are in other stupas railing representation of the Buddhist theme. ठीक है, ये जो बुद्धिस्ट थीम क्या मिलता है दैट इज द जतका स्टोरीज इन कॉम्बिनेशन विद द वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स जो कि हमने देख पहले दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स. ओके, अदर इज द अमरावती स्तूपा. इट वॉज लोकेटेड 46 किलोमीटर फ्रॉम द गुंटूर आंध्र प्रदेश. Now ये जो स्तूपा है it was originally built with the white marble. Now though the stupa itself has completely disappeared, इसका जो sculpted panel है has been preserved in Madras and the British Museum. And जो स्तूपा it was primarily built with the help of city chief and the donations from the public. ये जो magnificent स्तूपा है it was 42 meter in diameter, that is the 42 meter in diameter and 29 meter in height. It also contained a circular prayer pathway, that is the circumambulatory passageway, and it was which was the 10 meters. Okay, और उसमें there are the जो वेदिका है, जो वेदिका इसकी रेलिंग्स हैं उसमें ब्यूटीफुल कार्विंग्स हैं ऑफ द गार्लैंडेड गॉड्स की. एट द सेम टाइम बोधि ट्रीज, स्तूपास, धर्मचक्र परिवर्ता एंड द इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड ऑल्सो फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ जतकास दैट इज द प्रीवियस बर्थ. जो इसका एंट्रेंस गेटवे है दैट इज दिस एंट्रेंस गेटवे जो कि तोराना है ऑफ द स्तूपास. इट डिपिक्ट्स द 4 लॉइन्स ऑन द वेदिकास, दैट इज द 4 लॉइन्स ऑन द रेलिंग. Four lines on the railings. Okay, now there are also lotuses has also been carved out of the pillars. A number of images has also been found from the Amravati stupa. Now in the earlier stage Buddhas was represented only through the symbols, but from 1st century AD some Buddha images began to be found along with their symbols. Okay, next is the stupas at Nagarjuni Konda. Now the Nagarjuni Konda stupas it was built in a style different from that of North India. So इसका style कुछ different है. Here are the 2 circular walls at the hub and the other at the outer end. They were both joined by the spoke-like walls and the intervening space जो इसका बीच का space है it was filled with the mud or the small stones or the pieces of bricks. Okay, जो the diameter है of the stupa का it was 30 meter और जो हाइट है इसकी इट वॉज 18 मीटर. जो द आउटर केसिंग है ऑफ द ड्रम इट वॉज कंसिस्टेड ऑफ रिचली कार्व्ड मार्बल स्लैब्स.
ओके जो हेमिस्फेरिकल टॉप है ऑफ द ड्रम वॉज डेकोरेटेड विद द लाइम, जो कि हार्मिका का पोर्शन, इट वॉज डेकोरेटेड विद द लाइम एंड मोर्टार वर्क। और जो 4 रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस है, वन एट द ईच कार्डिनल पॉइंट सपोर्टेड अ रो ऑफ फ्री स्टैंडिंग, ओके सपोर्टेड अ रो ऑफ फ्री स्टैंडिंग पिलर्स। ओके नाउ दीज आर द फ्री स्टैंडिंग पिलर्स, यहाँ पे कोई सपोर्ट में नहीं है, इट वॉज द फ्री स्टैंडिंग पिलर्स। जो इंपॉर्टेंस क्या है स्तूपा का, इट वॉज बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल पैनल्स जो इलस्ट्रेट करते हैं एपिसोड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द बुद्धा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन्स यहाँ पे डिपिक्ट हैं, दैट इज द गॉड्स प्रेइंग टू बोधिसत्वास टू टेक बर्थ ऑन द अर्थ। Second is Buddha's entry into the womb in the form of a white elephant. Third is the birth of a Buddha under a flowering teak tree. Okay. Next is the stupa at Takshila. Now जो excavation है Takshila and the nearby places have exposed a number. There are the number of stupas here. Now so Sir John Marshall, that is the Sir John Marshall excavated the Chiratop stupa at the Takshila, that is the Chiratop stupa at Takshila. Now the casing here, the casing of the all drum in this stupa of the stone ornamentally decorated with the images of stupas, that is the images of bodhisattvas. Now in 1908 में जब excavations हुआ था, it revealed the existence of the stupa at the शाहजी की डेयरी। And that is in near Peshawar. Now this stupa was erected by the Kanishka and it was referred to in the account of Fahiyan, और ये फाहियान के accounts में mention है। Now the sculptures and the other objects of the art are the products of, ये जो अब तक्षशिला में है तो इसका सबसे ज़्यादा किसका इन्फ्लुएंस होगा, इनकी जो आर्ट्स होंगी, जो ऑर्नामेंटेशन होगा, दैट इज द गांधारा स्टाइल। Now these stupas, ये जो stupas है, it built over many centuries and it reveals a gradual evaluation. Now gradual evaluation of what? Now on the one hand the sculpture and the architectural style, on the other hand the religious thoughts along with the practices. So a gradual evolution हुआ है। Now there are the large number of stupas have been found in the many other parts of the country, और जो 2 stupas हैं we found in the मथुरा। Now ये जो पीरियड था जो stupas आर्किटेक्चर का, it developed into a particular styles, और जो at the same time there are some similar features of stupa we found in the various other regions, जो सजेस्ट करते हैं the mobility and the interactions between the artisans who built the stupas and the beautiful work of art associated with the stupas. Although ये जो different regions में similar features हैं, at the same time some regional distinct features are also available. Some similar features among जो कि common हैं among all the जहाँ जितने भी stupas हमें मिलते हैं, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। एट द सेम टाइम सम रीजनल डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल भी हमें इसको एविडेंस होता है, जैसे इट वॉज एविडेंट इन द फॉर्म्स ऑफ ऑर्नामेंटल डेकोरेशन। ओके सम रीजनल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी हमें मिलते हैं। तो हम इनकी लोकेशंस देख लेते हैं ना। ये जो स्तूपास थे, जो स्तूपास कॉम्प्लेक्सेस थे, ये मोस्टली मिलते हैं अर्बन सेंटर्स में, जहाँ पे भी इस्टाब्लिश अर्बन सेंटर्स थे इन द एंशिएंट टाइम। एट द सेम टाइम्स वेरियस ट्रेड रूट्स पे, पिलग्रिमेज सेंटर्स, जो भी पिलग्रिमेज रूट्स थे, और वो जगह जहाँ से बेसिकली some marked places that was connected with the important events in the life of the Buddha, जो कि importance जो भी लोकेशंस थी जो कि बुद्धास के लाइफ इवेंट से और या फिर बुद्धा से डायरेक्टली रिलेटेड थी, तो इस जगह पे यहाँ पे जो स्तूपास मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्सेस है, इट वाज लोकेटेड। ओके नाउ लेट्स इन द लास्ट वी सी द क्वेश्चन।
Now the question says, in order to attempt this question, please pause the video screen and write your answer in the comment section below. The question is that consider the following statement regarding stupas. Now the word stupa, जो इसका first reference मिलता है, it was found in the Rig Veda. Second is the stupa symbolizes death because it was built upon the bodily remains of the dead. Third is stupas were built on the bodily remains of the Buddha only. Fourth is the Harmika, there is a misspell here. Now Harmika in the stupa architecture symbolizes the abode of the gods, that is the seat of the god. So you have to choose the correct answer. Now here basically the third statement which says the stupas were built only the bodily remains of Buddha. No, earlier it was true. Earlier it was basically it was built upon the bodily remains of Buddhas, but later the remains of the Bodhisattvas or the other monks were also witnessed. So ये statement wrong हो जाएगी. जो three statement जिसमें भी हो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो all of the above, that is the 1 2 3 4. 3 इसमें भी इसको आप eliminate कर दोगे, you will get the right answer, that is the 1 2 3. Now so if you like this video, please do like, share and subscribe.